first session. You can please take your seats, madam, there. I would call the speakers and the person who will chair the second session. We will do quickly. 15 minutes में हम दो sessions करेंगे. The second session is on communal rights and its impact on Muslim women. I would request Ms. Khalida Parveen, member of Central Representative Committee, Jamaat-e-Islami Hind, to please come on the dais. She is the speaker for communal rights and its impact on Muslim women. And I would request also Mr. Mir Amir Ali Khan to be here because he is also a speaker, but you can, it's extended time for you, fortunately. Now I would also request Ms. Noor Jahan Siddiqui, please, if she is here. Noor Jahan Siddiqui, she is an activist. She was associated with many social organizations, especially with COA, now working with different other organizations and working in the slums, in places where the issues are, where the Muslims are facing atrocities and where the Muslims are facing all the trouble we are speaking about. Noor Jahan, please. Ms. Noor Jahan, please. And now I would request Advocate Janab Shafiqur Rahman, a known face and a very important person who has been fighting this war for the Muslim women in courts of India. And a very big hand for Mr. Advocate Shafiqur Rahman. I requested him also take the chair, but he says chairs are not for him, the courts are for him. He will be only giving the speech and he will be speaking about the subject, communal rights and its impact on Muslim women. I would request Ms. Zakia Soman from BAMM, if she is here, please come on the dais. Zakia Soman, please. Yeah, please come on the dais. You make it fast because we save 15-20 seconds if you make it fast. And we need each second now. We have only half an hour to go. I would also request Mr. Muhammad Rahmat, a social activist, a very nice young youth who will be doing the moderation for this session. Rahmat, please come in, take over. I invite you all, ladies and gentlemen, today's regional conference on behalf of National Commission for Women. Now I would like to present the bouquets to the dignitaries on the dais. I request Ms. Shamina Shafiq to present the bouquet. Mrs. Noor Jahan Siddiqui, COA. Mrs. Khalida Parveen, Central Representative Member, Jamaat-e-Islami Hind. Janab Shafiqur Rahman Muhajir Sahab, advocate, a well-known advocate. Now I would like to invite Advocate Shafiqur Rahman Sahab to speak on communal rights and its impact on Muslim women. Shafiqur Rahman Muhajir Sahab. I'm sorry, ladies and gentlemen, in 3 minutes there's nothing that can be said. There were questions asked about what the impact of communal rights on Muslim women is. उर्दू में अर्ज़ करता हूँ किस तरह वो मुतासिर होते हैं, क्या करना चाहिए,
किस तरह से वो जो मसाइल खड़े होते हैं उनको हल करना चाहिए, उन तमाम चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए तैयारी करके आया हूँ, लेकिन यहाँ पे बात करने के लिए वक्त नहीं है। इसलिए मैं हमारे जो होस्ट्स हैं उनको ईमेल कर देता हूँ जो ज़वाज हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस बात का अंदाज़ा था, तो मैं सुबह में मिसेस शमीरा शफीक को मेल कर चुका हूँ। एक बात कहना चाहता हूँ, कुछ लोग इस बात का ये ख्याल ज़ाहिर किए हैं कि इस्लामिक लॉ में तरमीम होना चाहिए। Somebody used the expression that law should be scrapped. मैं अर्ज़ करता हूँ कि जो लोग जिस सब्जेक्ट के बारे में सही जानकारी नहीं रखते हैं उनको उस पर गुफ्तगू नहीं करना चाहिए। वो क़ानून बिल्कुल अपनी जगह बरहक है, सही है, उसमें किसी किस्म की खामी नहीं है। उसको इम्प्लीमेंट करने में खामियां लाई गई हैं और उन इम्प्लीमेंट करने में जो खामियां लाई गई हैं, जो मसाइल पैदा होते हैं, उनको हल करने के लिए भी सुझाव बन चुका है। एक यहाँ पे लोग मौजूद हैं जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नुमाइंदे भी हैं। जो निकाह होता है वो इस्लामी क़ानून में अक़्द जायज़ा की तारीफ़ में आता है, उसमें सब क्लॉज़ेस हो सकते हैं। एक ढांचा हम बनाए थे, वो यहाँ के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में डिस्कस भी हुआ है, लेकिन जब आज से 4 साल पहले ये साउथ अफ्रीका के जमियातुल उलमा को गया तो 2 दिन के डिस्कशन के बाद उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया। इसमें हर चीज़ का, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन, औरतों का डिजर्शन के बाद डिस्टिट्यूशन से बचना, बच्चों की कस्टडी के मसाइल, इनहेरिटेंस के मसाइल, ट्रस्ट का क़ायम होना ताकि अगर माँ बाप एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं रखे तो बच्चों का ख़राबा ना हो, इन तमाम चीज़ों के सॉल्यूशंस दर्ज हैं। हर मसला जो खड़ा हो सकता है उसका सॉल्यूशन मौजूद है। ढूंढने वाले की ज़रूरत है और इम्प्लीमेंट करने वालों के लिए पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। माज़रत चाहता हूँ, टाइम नहीं है, इसलिए यहीं बात ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, sir. Now I'd like to invite Mrs. Noorjahan Siddiqui to speak on the communal rights and its impacts on Muslim women. राइस पे बैठे हुए सैनशीन पे और मेरे सामने बैठे हुए सब साथियों, इम्पैक्ट ऑफ मुस्लिम वुमेन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ये 2 मिनट या 3 मिनट में इसको बोल के हम ख़त्म नहीं कर सकते और हम उसके बारे में समझ भी नहीं सकते 2 मिनट में क्या इम्पैक्ट होता है। अगर ये बात सुनना है तो इसके लिए हमको ख़ुद को वो दर्द महसूस करना पड़ेगा। हम जब औरत की बात कर रहे हैं, क्या एक मुस्लिम वुमेन पे क्या इम्पैक्ट होता जब राइट्स होते, फसाद होता, तो मुस्लिम औरत ने माँ, बहन, बेटी, बीवी, ये 4 लेवल पे उसको असर होता है। सिर्फ खाली एक औरत बोल के असर नहीं होता। जब उसका बेटा चला जाता, वो माँ जो बेवा होती है, उसके बच्चे छोटे होते हैं और वो बहुत मुश्किल से उनको पाल पोस के बड़ा करती, या उसके बेटे को पुलिस पकड़ लेती, या उसे कहीं गोली लग जाती, या कहीं उसका मर्डर हो जाता, तो उसकी जो जितनी भी उसकी ज़िंदगी के अरमान है वो सब ख़त्म हो जाते। वो जो इम्पैक्ट है, जो उसका असर है, वो हमेशा अपनी ज़िंदगी भर उसको महसूस करना पड़ता है। एक बहन है, अगर हम देखें कि मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट में जो हो गए बच्चे पकड़े गए थे, उनकी जो बहनें थी, तो जब उनको रिश्ते आ रहे थे तो वो रिश्ते उसी किस्म के आ रहे थे जो बच्चा जेल में गया हुआ है, जो बच्चा चोरी करके बाहर आया हुआ है। तो ये उनका जो ज़िंदगी में जो असर पड़ा, तो ये शॉर्ट टाइम असर अलग होता है, लॉन्ग टर्म असर अलग होता है, जिसको हम महसूस नहीं कर सकते। वो अपनी ज़िंदगी में जब उनके शौहर का मतलब डेथ हो जाती है, उसका मर्डर हो जाता है, उसको गोली लगती है या कि किसी वजह से पुलिस पकड़ के लेके जाती है, तो वो उसके जो आंसू है, उसका जो दर्द है, भूख की जो शिद्दत है, उसको हम महसूस कर सकते हैं। जब तक हम उस तक नहीं पहुँचेंगे, उसके जाके बात नहीं करेंगे, वो तब तक हम वो चीज़ को एहसास नहीं कर सकते। और मैं नहीं समझती कि मैं उन तक पहुँची हूँ, मैं वो काम करी हूँ शफीकुल महाजिर के साथ, बहुत सारा उनके लिए रिहैबिलिटेशन करी हूँ, मैं उन्हें मदद करी हूँ, लेकिन मैं यहाँ वो बयान भी नहीं कर सकती। मुझे वो टाइम भी नहीं है कि मैं आपके सामने उनकी दर्द भरी, दुख भरी वो दास्तान पेश कर सकूँ। सब में बड़ा दर्द ये होता है कि जब भी राइट्स होते हैं, फसाद होते हैं,
हम लोग वक्तिया कुछ काम करते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वक्तिया काम करती है, वो जाती है, उनसे फीडबैक लेती है, फैक्ट फाइंडिंग करती है। पहले तो वो अपने मुसीबतों में मुब्तला होते हैं, वो अपने परेशानियों में होते हैं, भूख से परेशान हो रहते हैं, शोहर चले गया परेशान रहते हैं। हम जाके उनसे फिर से डबल कहानी सुनना चाहते कि बताओ क्या हुआ, बताओ क्या हुआ। हर ऑर्गेनाइजेशन जाके अपने बारे में, रिपोर्ट के बारे में, जो चीज़ वो भूलना चाहते हैं, जो चीज़ वो महसूस करते हैं, मजबूर होते हैं, उसको फिर दोबारा उसको खोद के बयान करने के लिए मजबूर करते हैं। तो ये भी एक है कि हम कैसा इसको कर सकते, कैसा इसके लिए काम कर सकते। और जिस तरह से 2-3 चीज़ें हैं, जुडिशरी है, कानून है, पुलिस है, हमको सिर्फ एक लेवल पे नहीं, इसलिए कि जो कानून बनता है वो वहाँ बनता, प्रॉब्लम यहाँ नीचे है, इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर हो रहा। तो ये बहुत बड़ा गैप है। इसके लिए हम जो पुलिस का जो रवैया है, जिस तरह से प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं, वहाँ हमको काम करना है। कानून तो बहुत बने हुए हैं, जैसा आप सबने फरमाया कि भाई वो 498 है, तलाक है, वो है, सब कुछ है, लेकिन क्या इससे एक औरत के लिए जो कानून बना, वो कानून से वो औरत महफूज है या उसको उससे कुछ फ़ायदा हो रहा? ये बहुत बड़ा सवाल हम सबके सामने। तो हम किस तरह से कानून से, पुलिस से, मीडिया से, जब भी कोई फसाद होता है 1 सेकंड में मीडिया इतने जल्दी उसकी रिलीज़ कर देता है, यहाँ तक कि 5 मिनट में कौन बम ब्लास्ट करे, किस तरह से हुआ, कैसा हुआ, गोया वो बम ब्लास्ट करने वाला पहले पूरी कहानी, पूरा बम ब्लास्ट करने का तरीका मीडिया को बता दिया, उसके बाद जाके बम ब्लास्ट करा। तो ये मीडिया में जो होता है, उसके लिए भी हमको बहुत ज़रूरी है कि हम उसके साथ भी काम करें, ग्रास रूट लेवल पे काम करें। ऐसे लेडीज़ जो ये इस तरह से अपने लोगों को, अपने शौहर चले जाता उसके लिए परेशान है, बेटा अगर पुलिस पकड़ ली परेशान है, तो उन लोगों के साथ हम कैसे उनकी काउंसलिंग करके उनके जो दर्द है उसको हम बांट सकते, काउंसलिंग करके उनके जो मुसीबत है उसको हम कम कर सकते, उनके हालात को हम कैसा कम कर सकते। हम ये करते हैं कि एक झाड़ है, एक दरख्त है जो कड़वा फल दे रहा है, हम उसके पत्ते तोड़ के फेंक देते हैं। हम ये सोचते हैं कि अब नए पत्ते आएंगे, वो बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम उसकी जड़ों को हिलाना पड़ेगा, उसकी जड़ों तक पहुंचना पड़ेगा, तभी हम ये काम कर सकते हैं। हम रिहैबिलिटेशन की बात कर रहे हैं, हम उन लोगों को कुछ भी मतलब एक स्विमिंग सेंटर डला देंगे, कोई दूसरा काम करेंगे, लेकिन मुस्तकिल हम ये फसादों को किस तरह रोकेंगे, इसके लिए हमारे पास कोई आइडियाज़ नहीं है। जो काम कर रहे हैं वो अपना काम करते चले जा रहे हैं, हम जो जूझ रहे हैं, हम जो मुसीबत उठा रहे हैं, हम गोली खा रहे हैं, हम जेलों में जा रहे हैं, हम मर्डर हो रहा, ये सब हम बर्दाश्त कर रहे हैं। इसके लिए हमारे पास कोई काम करने के लिए हम एकजुट होकर बैठ के उसके लिए आगे नहीं आ रहे। मैं इससे ज़्यादा मतलब बोलना नहीं चाहूँगी, ये टाइम बिल्कुल कम है। मैं पहले ही बताई कि इतने टाइम में पूरी हर चीज़ बोलना बहुत ही मुश्किल है। मेरा नेशनल वुमेन कमीशन से मेरा यह है कि जिस तरह से आप ये काम को लेके उठे हैं, तो ये सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस नहीं होना चाहिए, बल्कि ग्रास रूट लेवल पे ऐसे लोग जो इस प्रॉब्लम से जूझे हैं, उन तक आपको पहुंचना है, उन तक आपको जाना है, उनसे बातचीत करके उनके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। तभी आप एक अपना मुस्तकिल प्रोग्राम बनाइए और आगे इसके लिए कुछ काम करें तो बेहतर है। पत्थर मारने वाले का हाथ पकड़ के हम पत्थर फेंकना तो बंद कर सकते हैं। मैं चाहूँगी कि पत्थर मारने वाला पत्थर उठाना भूल जाए, इस तरह का काम करने की हमको ज़रूरत है। Thank you. Now I would like to invite Zakia Suman to express her views on this subject, communal rights and its impact on Muslim women. चार पांच मोटी तौर पे जो बातें हैं वो कम वक्त में कहने की कोशिश करूँगी। ज़्यादातर जो बातें हैं वो गुजरात का जो तजुर्बा है उस पर बेस्ड है। हमने सुबह में रशीदा की मुँह ज़बानी सुना कि जब वाकई में रायट होता है, जब हमला होता है, तो मुस्लिम कम्युनिटी का और ख़ासकर मुस्लिम कम्युनिटी में जो बच्चे हैं, औरतें हैं, उनको कितना झेलना पड़ता है, ये हमने सुबह में सुना। लेकिन जिस बात के बारे में शायद बहुत जानकारी नहीं है वो ये है कि गुजरात में जो इतना बड़ा हादसा हुआ, इतनी बड़ी ज़्यादती हुई, इतना बड़ा जुल्म हुआ स्टेट के एक तरफ से, उसको मुस्लिम कम्युनिटी ने कैसे झेला, कैसे उसका मुकाबला किया और उस मुकाबला करने में औरतों का क्या रोल रहा, मुस्लिम औरतों का क्या रोल रहा। अगर मैं मेरे लफ्ज़ों में कहूँ तो गुजरात में जो मुस्लिम औरतों ने जो रोल निभाया वो
एक तारीखी किस्म का रोल है, एक हिस्टोरिक किस्म का रोल है। शायद आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार ये हुआ होगा कि इतनी सारी तादाद में मुसलमान औरतें निकल के बाहर आईं और उन्होंने जो इतना एक ड्रैकोनियन स्टेट है, पुलिस जो इतनी ड्रैकोनियन है, कानून जिसको पूरा उन्होंने दबा के रखा है, जुडिशरी, मीडिया, सबको जो राइट विंग की ताकतें हैं उन्होंने दबा के रखा है। कैसे आम मुसलमान औरतें सड़कों पे आई, उन्होंने इंसाफ मांगा और इन्होंने इनके साथ टक्कर ली। ये सबसे बड़ी सीख लेने की बात है। और ये आगे ले जाने की बात भी ये है कि जो एक आम फैमिली के उन दिनों जो हालात थे 2002 में और 2003 में, जिस तरह से मार पड़ी थी, जिस तरह से सब कुछ जल गया था, घर जल गया था, रोजगार जल गए थे, पुलिस कंप्लेन लिखने तैयार नहीं थी, कहीं से कोई सुनवाई नहीं थी, तो जो मुसलमान समाज है वो एकदम एक तरह से कहें तो डिप्रेस हो गया था, फ्रस्ट्रेट हो गया था, कहीं ना कहीं हार मान चुका था। तो जो हिंदू राष्ट्र की जो बात है कि हिंदुस्तान में अगर माइनॉरिटी के लोग रहेंगे तो भी वो सेकंड क्लास सिटीजन बन के रहेंगे, बराबर सिटीजन बन के नहीं रहेंगे। कुछ हद तक उन्होंने इस बात में गुजरात में कामयाबी हासिल कर रही थी। लेकिन आप किसी भी रिलीफ कैंप में जाते और रिलीफ कैंप के बाद का भी जो दौर आया, जो रिहेबिलिटेशन का दौर आया, जस्टिस मांगने का दौर आया, कॉम्पेंसेशन मांगने का जो दौर आया, तो आप किसी भी जगह जाते, किसी भी शहर में हमारे जाते, तो आप सुनते कि जो सबसे ज़्यादा गुस्सा, जो इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी हुई, उसके लिए सबसे ज़्यादा गुस्सा जो था वो एक आम मुसलमान औरत के दिल में था। और जगह जगह ये बात सुनने मिलती थी कि हमें इंसाफ चाहिए, अगर इंसाफ मिले तो हमें मदद की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको ऐसे मतलब समझती हूँ कि वो एक आम ऑर्डिनरी मुसलमान औरत का हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है उसमें उनका यकीन था। जगह जगह औरतें हमको ये कहती थी कि अगर ये नरेंद्र मोदी की सरकार खराब है, अगर यहाँ की कोर्ट खराब है, हमको अगर इंसाफ नहीं दिलाएगी तो क्या है, हम कोई बात नहीं, हम पार्लियामेंट जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम लड़ेंगे, लेकिन हमें इंसाफ मिलेगा। तो ये एक सीखने की बात है कि कैसे आम मुसलमान नागरिक, आम मुसलमान औरत को यकीन है कि वो भारत की जो डेमोक्रेसी है, हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है, उसमें वो बराबरी की हकदार है, और अगर वो हक उससे कोई भी छीनने की कोशिश करेगा तो वो उठेगी और लड़ाई करेगी। सो ये मेरे लिए, ये पर्सनली मैं मानती हूँ कि ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हम मुसलमान हैं, हम ज़रूर गरीब हैं, हम ज़रूर पिछड़े हुए हैं, लेकिन हम किसी से कमतर नहीं हैं। और जहाँ तक जो देश का जो निज़ाम है, जो आइन का निज़ाम है, जो एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस है, उसमें हम बराबरी के हकदार हैं, बराबरी के सिटीज़न हैं, और कोई हमें कुचल नहीं सकता। तो मैं ये इस तरह से देखती हूँ। और जो रशीदा यहाँ बैठी हैं उन्होंने तो अपनी बात बताई। कमर जहाँ यहाँ बैठी हैं, कमर जहाँ एक ऐसी बहन है जिनके भतीजे को पोटा में डाला था। और आप लोगों को शायद मालूम होगा कि 2002 में जितने दंगे हुए, 1000 से ज़्यादा लोगों की जानें गई, घर जले, प्रॉपर्टीज़ जली। उसके बाद 2003 में करीब 250 के करीब मुसलमान बच्चों को फर्जी तौर पे टेररिस्ट कह के उनको पोटा में डाल दिया गया। सो उनमें से एक जो था परवेज़, वो तो यहाँ हमारी कमर जहाँ आई है उनका भतीजा है वो। पोटा एक ड्रैकोनियन कानून है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कानून है, ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको इम्पिंच करता हुआ कानून है, और ये कानून हटाना चाहिए, इसको रिपील करना चाहिए। इसको लेके गुजरात की मुस्लिम औरतों ने, आम मुस्लिम औरतों ने, जो आप यहाँ बैठी हैं, बुरखे वाली मुस्लिम औरतों ने बहुत बड़ा स्ट्रगल किया। उन्होंने लगातार अहमदाबाद में प्रोटेस्ट किया, पीपल्स ट्रिब्यूनल में पार्टिसिपेट करने दिल्ली गई, बॉम्बे में भी जाके उन्होंने प्रोटेस्ट किया। काफ़ी मतलब करीब 1.5 से 2 साल तक आम मुसलमान औरतें, उनमें से बहुत सारी ऐसी थी कि जो बुरखे में मुसलमान औरतें थी, जो कभी घर के बाहर नहीं गई थी, लेकिन जब उनके बच्चों को, उनके शौहरों को या उनके भाइयों को गलत तरीके से पोटा लगा के जब उनको टेररिस्ट कह के जब जेल में डाल दिया, तो उन्होंने ये पूरा स्ट्रगल किया। उसका नतीजा ये आया कि पोटा को रिपील किया गया जब यूपीए की सरकार बनी। अब ये अलग बात है कि वो रिपील जो हुआ वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं हुआ, तो रिपील होने के बाद भी बहुत सालों तक हमारे बच्चे जेलों में सड़े। तो वो एक अलग मतलब एक अलग डिस्कशन का एक वो सब्जेक्ट है।
मेरा कहने का मकसद यही है कि जब कौमवाद का जहर फैलता है, और ये जहर अपने आप तो नहीं फैलता है, जो हिंदू राष्ट्र की एक सोच है, जो आरएसएस हमारे देश में आगे लेके जा रही है, और अब तो हमको मालूम है, कल की जो खबर है कि जो एक इसका जो सबसे घिनौना चेहरा है इस सोच का, वो चाहते हैं कि वो हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो ये समझने की बात है कि वो जो हिंदू राष्ट्र की सोच है उसके तहत जो कम्युनल वायलेंस होता है, ये लोग जो कम्युनल वायलेंस करवाते हैं, उसमें उन्होंने स्पेशल तरीके से सोचा हुआ है कि मुस्लिम औरतें हैं और या माइनॉरिटी की जो औरतें हैं उनके साथ वायलेंस करना, सेक्सुअल वायलेंस करना ज़रूरी है। ये वो जो सड़ी हुई गंदी जो सोच है उसका ये हिस्सा है, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि जब हम मुसलमान औरतों की बेइज्जती करेंगे, उनके ऊपर जब सेक्सुअली हम हमला करेंगे, तो मुसलमान मर्दों की और मुसलमान समाज के जो डिग्निटी है या की जो इज्जत है उसके ऊपर हम वार कर रहे हैं। ये वो ऐसी घटिया और जहरीली सोच का हिस्सा है जिसके तहत ही गुजरात में 2002 में करीब 350 से 400 मुसलमान औरतों के साथ मास सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, जिसमें सिर्फ जस्टिस मिला तो सिर्फ एक बिल्किस वाले केस में मिला और किसी केस में नहीं मिला। तो ये मतलब एक सोची साजी समझी हुई साजिश है। हमारी उम्मीद ये है कि हम इसको लड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं उसका जो तजुर्बा जो गुजरात में रहा है, जो आम लोगों ने और ख़ासकर आम मुसलमान औरतों ने जो इसका मुकाबला किया है, वो अगर और स्टेट्स में भी उसके बारे में बता सकें तो अच्छा रहेगा। और सारी जो सजेशंस हैं और वे फॉरवर्ड्स हैं वो ज़रूर मैं लिख कर शमीना शफीक को भेज दूंगी, और नेशनल कमीशन फॉर विमेन का शुक्रिया और शमीना का शुक्रिया यहाँ बुलाया इसलिए। Thank you, ma'am. We are running out of time. So, this was the Zakia Suman. She was outrightly condemning the growing intolerance and violence of right-wing groups. So, I would like to invite Mrs. Khalida Parveen Sahiba, member of Central Representative Committee, JAS, to express her views. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उदखुलू फी सिल्मी काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ, बस यही काफ़ी है अगर हम आज समझ सके तो। टाइम बहुत कम है, 3 मिनट, बातें बहुत हैं। सिर्फ सजेशंस में भी बिल्कुल तो 1-2 सजेशन नहीं हम दे सकते हैं, वरना हमारा भी दिल चाहता है कि हमसे लंबी बात करें, ऑर्गेनाइजर से भी और ऑडियंस के साथ भी। कि मैडम जिस सुबह में अपने नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के बताए थे, PPP, पुलिस, प्रेस, पॉलिटिशियंस, सॉल्यूशन तो यहीं पर है। अगर ये सही हो जाए तो ये कोई वायलेंस नहीं रहता। ख़वातीन के लिए तहफ़्फ़ुज़, तरक्की, इज़्ज़त सब कुछ मौजूद। तो ये 3 चीज़ को कैसा रिफॉर्म करेंगे, एरेडिकेट करके रिफॉर्म करना, एरेडिकेशन नहीं करना, रिफॉर्म करने को गुंजाइश नहीं है कि अब इसको एरेडिकेट करना, जब मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम को एरेडिकेट करना, सही सिस्टम को लेके आके खड़ा करना। जब पॉलिटिकल सिस्टम सही हो जाएगा तो पुलिस सिस्टम ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल में आ जाएगी। जब पुलिस और पॉलिटिशियंस एक हो जाएंगे तो मीडिया तो वैसे ही बेचारे। तो ये हमको करना है, यही सॉल्यूशन है। और जो मेरा एहसास है कि इस तरह के सेमिनार, सिम्पोजियम के तक ये बात ना रखें, ग्राउंड पे जाएं, हम लोग ग्राउंड रियलिटीज़ को एड्रेस करने के लिए कोई इंतज़ाम करें। कि सेमिनार में कुछ लोग आते हैं, पेपर प्रेजेंटेशन करते हैं, और मैं माजरत के साथ कहना चाहती हूँ आपसे कि पेपर पढ़ के, पेपर देख के, स्टैटिस्टिक्स देने वालों को एंटरटेन करने के बजाय आप रियलिस्टिक वो पर्सनालिटीज़ को ला के एंटरटेन करते तो महफिल बहुत ज़्यादा गर्म रहता था, सही सॉल्यूशन मिलता था, उनके आंखों के आंसू जो बहते थे सॉल्यूशन निकल आ जाता था। लेकिन ये पेपरों में क्या बताते हैं, स्टैटिस्टिक्स, कोई भी इंटरनेट का एक प्रेस बटन दबाता था, स्टैटिस्टिक्स सामने आता। कि मैं चाहती हूँ कि
कि रियलिटी की तरफ हम आ जाएं और विक्टिम्स के पास जाएं, विक्टिम्स के सोल्यूशन निकालना चाहिए तो हमको वहाँ जाना है कि अगर ये सेमिनार उन घर तक जा सकता है, ये सिम्पोजियम उन घर तक जा सकता है, तभी सोल्यूशन निकल सकता है। कि पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर कि जो मुसलमान है, मुसलमान सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस है, इन लोगों के हैसियत डोरमैट के हैसियत से ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट डोरमैट्स। इसलिए हमको चाहिए कि चाहे मुसलमान औरत हो या मर्द हो, कि पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर आके एम्पावरमेंट जब तक हासिल नहीं करते, इस गवर्नेंस के अंदर हम इन्वॉल्व नहीं होते, ये पॉलिसी मेकिंग जगह पे जब तक हम नहीं रहते, हमारे नौजवान बच्चों को कुर्बान लाजिम है। ये होके रहेगा कि हम दोनों, हम दिल जल के बोल रहे हैं। हम कल भी गए थे घरों को कि एक छोटे से बच्चे को उठा के ले आते, जो एग्ज़ाम जाते उसको उठा के लेके जाते, 4 दिन तक गायब रखते, पता नहीं करते, दिखाते नहीं, बोलते नहीं, उसके बाद लोग छोड़ देते कि उसके ऊपर कोई केस नहीं, बस माँ बाप खुश, कोई केस नहीं। 4 दिन तक गायब था बच्चा, क्या किए थे उसके साथ, क्या बताते हैं उनके बारे में कि बच्चे कितना डराते थे, कितना कॉन्फिडेंस लेके बात करना है तो उसको कौन मना करते। घर के माँ की हालत मैं ऐसे 1-2 माँ की बताती हूँ। ये एक माँ तो आज तक पैरालाइज्ड है, सीधे हाथ उठा नहीं सकती है वो, कि आज तक भी, आज से 20 ईयर से वो माँ पैरालाइज्ड है, कि और एक माँ आज कान से सुन नहीं सकती है। ये माँओं की हालत है। बीवियों की हालत क्या होती है? ग्राउंड रियलिटी की तरफ जाना है हमको कि उन लोगों के लिए क्या हम इकदाम कर सकते हैं। पावर नहीं तो क्या कर सकते हैं? ऐसे डंडोरा पीट सकते हैं, सेमिनार बना सकते हैं। आइए मैडम, अगर आपको आखिर जो है ना दर्द है नेशनल कमिश्नर ऑफ वुमेन का, आप मुस्लिम वुमेन्स का आइडेंटिफाई कीजिए इस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर रिफॉर्म करने के, रिफॉर्मेंट्स के लिए या इसका इराडिकेट करने नए सिस्टम के लिए हम आगाज़ कर चुके हैं। आप वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया को हमको साथ दीजिए और हमको सिस्टम बदलने दीजिए। ये हिंदुस्तान के पूरे ख़वातीन के मसले को हम हल करके रखेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। Thank you, ma'am. Now I'd like to invite Mr. Amir Ali Khan for the concluding remarks on the subject communal rights and its impact on Muslim women. चूँकि वक्त कम है, मैं सिर्फ अपने एक शेर लिख के लाया था, वो यहाँ पढ़ दूँगा। हिम्मत उस शख्स की क़ानून बढ़ा देता है, हिम्मत उस शख्स की क़ानून बढ़ा देता है जो फसादात के शोलों को हवा देता है। ऐसे ही हालात थे जो गुजरात में गुजरात के लोग ख़ास तौर पे इन शोलों को, दरिंदा सिफत क़ायदीन को देख चुके हैं। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको इस बात की ज़मानत देता हूँ कि आइंदा 2014 के इलेक्शन में मोदी का ख्वाब ही रहेगा। आप बेफिक्र रहिए गुजरात के लोग कि आपका तहफ़्फ़ुज़ अल्लाह करने वाला है। ये कोई आसान बात नहीं है कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठना, इसलिए कि जब अभी सुबह के सेशन में ये बात हो रही थी कि जो दस्तूर है हिंदुस्तान का वो सेक्युलरिज़म पे बना हुआ है। और आज गुजरात के जो फसादात हैं, जो मुतासिर तो ज़्यादातर मुसलमान हैं, लेकिन जो केसेस लड़ रहे हैं वो हिंदू भाई लड़ रहे हैं। यही बहुत बड़ी हिम्मत की बात है कि हिंदू भाई मुसलमानों के लिए आगे आ रहे हैं और केसेस लड़ रहे हैं। तो खैर कम्युनल वायलेंस की जहाँ तक बात है, सबसे बड़ा शिकार कम्युनल वायलेंस होते ही वो मुसलमान बनता है, इसलिए कि पुलिस पहले तो हरकत में आती नहीं, और जब हरकत में आती है तो जब मुसलमान सड़कों पे रहता है। और ऐसे ही हालात बहुत ज़्यादा पेश आते हैं जहाँ के बहुत सारे मुसलमान गायब हो जाते हैं, सफ़े हस्ती से मिट जाते हैं, 4-5 दिन तक उनका पता नहीं चलता। तो जो हालात रहते हैं घर के, अगर सुबह में चेयरपर्सन की बात हो रही थी कि ममता शर्मा है, उनके दिल में ममता की बात है, तो वैसा ही ये है कि ये ऐसा क़र्ज़ है, हर नौजवान या हर मुतासरा ख़ानदान इस शेर के साथ अपनी गवाही देगा कि ये ऐसा क़र्ज़ है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। मैं जब तक घर ना लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। तो ऐसे ही अशार हैं जो हमारे को सोचने के लिए, दावत फ़िक्र देने के लिए काफ़ी हैं कि कम्युनल वायलेंस में सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है। अब चाहे वो मुजफ्फ़रनगर का वाक़या हो या गुज़िश्ता 1 साल में मुस्तहकम हुकूमत के तहत हमारे 26 फसादात हुए हैं यूपी में। तो इन सब को निमटने के लिए हमको क़ानून में, गवर्नमेंट सर्विसेज में, अदालतों में, जैसा अभी बात हुई कि कोई मुफ्ती को हम अदालत में नहीं बिठा सके, तो ऐसे इदारों में जहाँ पे पॉलिसी बनती है, पॉलिसी साज इदारों में हमारी
मौजूदगी का एहसास वहाँ दिलाना ज़रूरी है। इसके लिए हमको आइंदा सदी में मुसलमानों को अपने आप को तैयार करना है। इसके साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। Thank you very much. Now we are coming to the concluding part of the whole session.